everybody, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is discharge of surety from liability. Guys, this is going to be my last video on contract of guarantee since I've covered all the important sections related to contract of guarantee in the Indian Contract Act 1872. So guys, without any further delay, let's get started with discharge of surety from liability. Guys, this is going to be a bit of lengthy video because I'm going to cover a lot many sections related to relevant to discharge of surety from liability. And guys, before we move on, if you are new to my channel and have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please leave a comment. Please let me know in the comment section and do like all my videos. So guys, let's get started with discharge of surety from liability. इस concept में basically we'll be studying कि जो surety होता है one of the three parties in a contract of guarantee. हमें पता है कि surety की he is liable both towards principal debtor and towards creditor. हम वही देखेंगे कि under what circumstances, by what modes can a surety be discharged from his obligation towards both creditor and principal debtor. डिस्चार्ज ऑफ का मतलब होता है उसकी लाइबिलिटी कैसे खत्म होगी. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी. श्योरिटी हैज सर्टेन लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स बोथ क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर. दोनों के टुवर्ड्स उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, बट श्योरिटी उन लाइबिलिटीज से खत्म हो सकता है. ही कैन पुट एन एंड, he can discharge of those liabilities via certain modes which we are going to discuss today. So guys, beginning with first important mode, which is by revocation by surety. This section 130 and section 131, these two sections I have already discussed when I discussed kinds of guarantee. उसमें अब discussed continuing guarantee is a type of guarantee. उसमें हम already इन sections को discuss कर चुके हैं guys. So I think you might be familiar with these two important sections, which is by revocation of surety and by revocation by surety and by death of surety. Guys, what happens is कि a surety under section 130 of the Indian Contract Act clearly कहा गया है कि a surety में revoke कंटिन्यूइंग गारंटी एट एनी टाइम. किसी भी टाइम एक श्योरिटी कंटिन्यूइंग गारंटी, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, श्योरिटी में रिवोक कंटिन्यूइंग गारंटी एट एनी टाइम वाया नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द क्रेडिटर एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न. आई होप आपको ये रिकैप्चुलाइज हो चुका है. हमने रीड किया था सेक्शन 130 में कि एक श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है अगर वो अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर दे बाय नोटिस टू द क्रेडिटर. सो अब आपने देख लिया कि एक कंटिन्यूइंग गारंटी की मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दी थी. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन काइंड्स ऑफ गारंटी और टाइप्स ऑफ गारंटी. उसमें विद इलस्ट्रेशंस आई हैव टॉट यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ specific guarantee which is only a single specific transaction. Single specific transaction होती है specific और ordinary guarantee में. Continuing guarantee involves a series of transactions. So जब एक surety stands as a surety for continuing for more than one transaction, he stands liable for a series of transactions. उसको हम बोलते हैं continuing guarantee. अब मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि continuing guarantee कभी तो end होगी ना. उसको एंड करने के लिए श्योरिटी को क्या करना होता है, ही हैज़ टू राइट अ नोटिस रिवोकिंग हिज कंटिन्यूइंग गारंटी टू द क्रेडिटर. सिर्फ उसको एक नोटिस लिखना है कंटिन्यूइंग गारंटी का टू द क्रेडिटर, और जैसे ही वो क्रेडिटर को नोटिस लिख देगा उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी विल कम टू एन एंड, इट विल सीज एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न. इट मीन्स कि ही विल ओनली बी लायबल अप टू द डेट and he will not be liable thereafter. For example, continuing guarantee है for the month of January, February, March. 3 महीने के लिए continuing guarantee है. श्योरिटी को लगता है कि आई वॉन्ट टू डिस्चार्ज ऑफ माई लाइबिलिटी, मैं कंटिन्यूइंग गारंटी को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आफ्टर फॉर एग्जाम्पल जनवरी के महीने के बाद उसने कहा कि आई वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू विद इट. सो ही हैज़ टू राइट अ नोटिस रिवोकिंग हिज कंटिन्यूइंग गारंटी टू द क्रेडिटर. उसको लिखना होगा एंड ही विल बी हेल्ड लायबल. His liability will fasten up only up to the month of January or for the month of January, and he will not be liable thereafter for the month of February and March. I hope I am able to communicate कि किस तरीके से एक श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द क्रेडिटर. आपको क्रेडिटर को एक नोटिस लिखना है रिवोकिंग और कंटिन्यूइंग गारंटी. गाइस मैं यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी को क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज गाइस जो स्पेसिफिक गारंटी होती है इट इज़ फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. That single specific transaction is indivisible. It is not capable of being divided. Continuing guarantee को आप divide कर सकते हो. For example, Jan, Feb, March 3 महीने के लिए. So you can break it up in parts. लेकिन because it is a series of transactions. But if I talk about specific or ordinary guarantee, it is a specific. It is for a single specific transaction. That transaction is single, so it is indivisible.
सो अगर आप एक स्पेसिफिक गारंटी की बात करोगे, इट इज़ नॉट रिवोकेबल, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, इट इज़ वंस एंड फॉर ऑल. बट इफ आई टॉक अबाउट कंटिन्यूइंग गारंटी इज सर्टन, इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग रिवोकिंग. आप उसको रिवोक कर सकते हो. रिवोक किस तरीके से कर सकते हो? बाय अ लेटर, बाय अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द क्रेडिटर. बट इट विल बी, मतलब श्योरिटी कैन रिवोक इट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप उसको रिवोक कर सकते हो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी to the surety as far as future transactions are concerned, as far as months of February and March are concerned, but your liability will fasten up only up to that particular month and not thereafter. I hope you are getting it. उसके बाद आपकी liability नहीं होगी, हम मान लेंगे कि surety अपनी liability से discharge हो चुका है. Secondly, we talk about section 131 which is by death of surety. Guys, I've already told you कि continuing guarantee में क्या होता है. कंटिन्यूइंग गारंटी में सपोज जन फेब मार्च अप्रैल 2-3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही थी. नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी श्योरिटी, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन ही डाइज. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि डेथ ऑफ श्योरिटी ऑटोमेटिकली गाइज ऑटोमेटिकली ऑपरेट्स एज एन एंड टू दैट कंटिन्यूइंग गारंटी. अब जब श्योरिटी की डेथ हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, इट स्टैंड्स रिवोक्ड, इट स्टैंड्स कैंसल्ड, वो खत्म हो जाएगा. आई होप आपको समझ आ गया. तो उसकी सिचुएशन में भी कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी, इट विल एंड विद द एंड ऑफ दैट पर्सन. आई होप यू आर गेटिंग इट कि सेक्शन 130 एंड 131 बोथ दीज सेक्शंस दे डील विद कंटिन्यूइंग गारंटी. Here we are not talking about specific guarantee, guys, because specific guarantee is for a single specific transaction which is incapable of being divided. It is indivisible. So वो once and for all होती है, उसको आप revoke भी नहीं कर सकते once you have entered into it. और अगर surety की death होती है, उसका effect नहीं होगा अगर single specific transaction has already been performed. It is, something different. But here we are concerned with continuing guarantee. It is continuing and it will be continued as long as surety himself revokes it via letter or notice of revocation to the creditor. But उसकी जो liability है, it will fasten only up to the date जब उसने revocation करी है and not thereafter. I hope I am able to communicate कि किस तरीके से sections 130 and 131 are modes, different modes in which surety is discharged from his liability. Guys, a point to be noted in these two sections is that अगर contract to the contrary नहीं है तो ये जनरल रूल फॉलो होगा. जनरल रूल क्या है कि अगर श्योरिटी की डेथ होती है, दैट विल ऑटोमेटिकली पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, टू दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न्ड, एज फार एज ट्रांजेक्शंस कंसर्निंग मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी मार्च आर कंसर्न्ड, राइट. या फिर अगर वो, ये भी एक जनरल रूल है कि अगर आपने नोटिस दिया ऑफ रिवोकेशन ऑफ योर श्योरिटीशिप कंटिन्यूइंग गारंटी, तो वो भी क्या है, एक जनरल रूल है. बट गाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी हुआ है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी टू व्हाट, कॉन्ट्ररी टू दिस जनरल रूल्स, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी टू दिस जनरल रूल्स हैव बीन एंटर्ड इनटू बाय द श्योरिटी एंड क्रेडिटर, अगर इन्होंने कोई किया है तो गाइज इन दैट सिचुएशन वो जो स्टिपुलेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, उसी को फॉलो किया जाएगा. आई ऑलवेज टेल यू कि जो आपका वो होता है जनरल रूल होता है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड. बट इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसी को फॉलो किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट हियर मीन्स अगर स्टिपुलेशन में साफ साफ ही लिखा है कि श्योरिटीज डेथ विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूइंग गारंटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा श्योरिटी की डेथ का, एंड इट विल रिमेन ऑपरेटिव एज इट वॉज एज फार एज फ्यूचर ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चलता रहेगा. ये जनरल रूल है, लेकिन इफ देयर इज अ स्टिपुलेशन विच शोज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, तो उसको हम फॉलो करेंगे. या फिर इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी हो सकता है, श्योरिटी लिख सकता है कि देयर शैल बी नो कंडीशन एट एनी कॉस्ट, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं होगा. कंटिन्यूइंग गारंटी अगर 1 साल की है तो वो 1 साल चलती रहेगी, कभी भी मैं इसको रिवोक नहीं करूंगा, यानी इट शैल नॉट बी रिवोक्ड, इट शैल रिमेन ऑपरेटिव एज फार एज सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न. जब तक एक साल की कंटिन्यूइंग गारंटी है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल तक चलती रहेगी, आई विल नॉट रिवोक इट. सो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज दिस जनरल रूल्स विल बी फॉलोड, एंड दीज जनरल रूल्स दे हैव अ पावर टू डिस्चार्ज श्योरिटीज लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर एंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर. आई होप these 2 sections are very much clear to you. Talking about third important mode, which is by variance in terms of contract. It is under section 133 of the Indian Contract Act. Guys, variance का मतलब होता है any kind of variation, any kind of alteration, any substitution, any kind of change or modification in a contract, in the original contract. A point to be noted is that in the original contract.
व्हाट हैपन्स इज गाइस, बहुत बार क्या होता है कि श्योरिटी के कंसेंट के बिना, विदाउट श्योरिटी इज नोइंग इट और विदाउट श्योरिटी इज कंसेंट, बहुत बार क्या होता है कि हमारे क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ये दो लोग क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बदल देते हैं। आई विल बी गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को एक लैंड दी लीज पे। क्रेडिटर गेव अ लैंड टू प्रिंसिपल डेटर ऑन लीज और उसने कहा कि 100 and 100 एकड़ ऑफ लैंड है और आप मुझे इतना जो है वो रेंट पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ रेंट आप मुझे पे करोगे। दिस वॉज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड श्योरिटी स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर दिस पर्सन जिसने लैंड परचेज करी थी। उसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी ही स्टूड एज श्योरिटी और क्रेडिटर को बोलते हैं कि आई एश्योर कि आपको हर महीने 20,000 पर मंथ देंगे एंड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, कभी भी अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया, आई शैल बी लाइबल टुवर्ड्स पेइंग 20,000 रुपीज़ टू द क्रेडिटर। उन्होंने ये श्योरिटीशिप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अब गाइस व्हाट हैपेंस इज कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने श्योरिटी की नॉलेज के बिना, विदाउट श्योरिटी नोइंग इट और विदाउट हिज कंसेंट, they altered, they changed or they substituted the original contract with some new contract। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिना श्योरिटी को पूछे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्रेडिटर बोलते हैं कि मैं जो आपको लैंड लीज पे दिए वो थोड़ी सी और मैं इंक्रीज कर देता हूँ और आप मुझे रेंट 30,000 पर मंथ रुपीज़ दिया करो, यानी कि आप गिवन 100 and 100 एकड़ ऑफ लैंड टू यू, एकर्स में इंक्रीज कर देता हूँ और आप मुझे अब 30,000 पर मंथ दोगे। अब गाइज इसका इम्पैक्ट श्योरिटी पे कहीं ना कहीं होगा, बिकॉज इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ के लिए प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी को तो लगेगा कि मुझे 20,000 पर मंथ देने हैं, बट अगर अब उन्होंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस को ही ऑल्टर कर दिया श्योरिटी की मर्जी के बगैर, ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज चेंजेस इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ही हैज़ टू पे 30,000 रुपीज़। इट मीन्स ही हैज़ टू पे 10,000 मोर देन व्हाट ही हैड कंटेम्पलेटेड। उसने सोचा भी नहीं था कि मुझे 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। इट मीन्स इस सिचुएशन में भी श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी बोथ टुवर्ड्स क्रेडिटर एंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर। तो यही लिखा है कि बाय वेरिएंस इन टर्म्स, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएंस कर दी जाती है, चेंजेस कर दिए जाते हैं, ऑल्ट्रेशंस कर दी जाती है, मॉडिफिकेशंस कर दी जाती हैं, बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट इज विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। श्योरिटी को पता भी नहीं, एंड दीज टू पीपल, creditor and principal debtor, they have entered into agreement with each other and they have materially substituted original contract with some new contract, former agreement with some new agreement, और श्योरिटी को उसके बारे में नहीं पता। यहाँ पे श्योरिटी के लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली है। रीजन बिंग ही हैज़ टू पे समथिंग मोर देन व्हाट ही हैज़ कंटेम्पलेटेड फॉर। आई मीन 20,000 के बजाय 30,000 देना, तो वो कहेगा कि यहाँ पे original contract was something which was entered, I have stood as a surety for that contract, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं 20,000 दूंगा। ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है, हमारा कंसेंसस एडाइडम नहीं है, वी पीपल आर नॉट एट कंसेंसस। आप लोगों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, हेंस इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये वैलिड कंसेंट नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैप्चुलाइज होते हैं। तो वही यहाँ पे है कि जिस चीज़ के लिए श्योरिटी ने कंसेंट दिया था वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उसने सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट नहीं दिया। इट मीन्स उसका कंसेंसस नहीं था विद द माइंड्स ऑफ बोथ क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। उन्होंने कुछ और सोचा, श्योरिटी ने कुछ और सोचा। तो जब कंसेंसस नहीं है तो वैलिड कंसेंट नहीं है, वैलिड कंसेंट नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज। तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा, और पुराना कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्योरिटी इज एवर लायबल, बट ही इज नॉट लायबल फॉर दिस वेरियंस और फॉर दिस न्यू। तो वेरियंस में हम क्या बोलते हैं कि वेरियंस में दो चीज़ें होती हैं। वेरियंस मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो आपको ये समझ आ गया। दूसरी बात, इट इज समवेयर और द अदर टू द प्रेजुडाइस ऑफ द श्योरिटी। प्रेजुडाइस का मतलब होता है हार्म। अब ऑब्वियसली यहाँ पे श्योरिटी के लिए हार्मफुल है कि उसको 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो वेरियंस में क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया जाता है। वेरियंस यानी कि सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को विद सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी स्ट्रेंज और वेरी न्यू टू द श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी को उसके बारे में नहीं पता था, एंड दे आर टू द प्रेजुडाइस, they are to the harmful interest of the surety to which surety may or may not consent। वो consent देता या नहीं देता। so he is deemed to be discharged from his liability towards both creditor and principal debtor। I hope you are getting it। but guys यहाँ पे एक और situation आती है। बहुत बार क्या होता है
कि जो हमारी श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ में आप देखो, अगर हमारा क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को बोलता है कि मैं आपसे 20,000 ही 15,000 पर मंथ लूँगा, अगर यही मतलब आप इसी सिचुएशन को आप थोड़ा चेंज करके देखो, मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन होगी, मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ही वेरिएंस होगी, बट वेरिएंस 20 से 30,000 होने के बजाय 15,000 होगी। अब यहाँ पे देखो, इज इट हार्मफुल टू श्योरिटी? श्योरिटी अगर प्रिंसिपल डेटर कभी भी डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी इन दैट केस हैज टू पे 15,000, इट मीन्स 5,000 रुपीज लेस देन व्हाट ही हैज कंटेम्पलेटेड फॉर। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी, हम प्री जुडिशियल तो नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू हिज इंटरेस्ट, इनफैक्ट उसके लिए वो अच्छा है। तो कोर्ट बोलते कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएंस होती है तो वो तभी श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगी अगर वो वेरिएशन ऐसी है विच इज़ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी। इट मीन्स वेरिएशन क्या होनी चाहिए? इट शुड सब्सटीट्यूट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच श्योरिटी इज नॉट अवेयर ऑफ। मोरओवर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि श्योरिटी के इंटरेस्ट को वो प्री जुडिशियल होने चाहिए। इट शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी, यानी कि ही हैज़ टू पे समथिंग मच मोर देन व्हाट ही कंटेम्पलेटेड फॉर। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में ही हैज़ टू पे 5,000 रुपीज लेस। तो कोर्ट बोलता है कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज इंजूरियस टू हिज इंटरेस्ट, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ मटीरियल ऑल्ट्रेशन, इट इज़ समथिंग विच इज़ अनसब्सटैंशियल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्योरिटी हैज़ टू पे 5,000 लेस, सो इट इज़ समवेयर और द अदर बेनिफिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वेरिएंस होगी वो श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट्स आई बहुत सारी, जहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियरली बोल दिया कि वही वेरिएशन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगी जो उसके प्रेजुडाइज के लिए होगी, विच इज़ टू दी हार्मफुल इंटरेस्ट ऑफ द श्योरिटी। मोरओवर गाइस, बहुत बार क्या होता है कि श्योरिटी के कंसेंट के साथ किया जाता है, तो अगर श्योरिटी के कंसेंट के साथ वेरिएशन की गई है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड, material terms and conditions of the original contract they have been varied, but if it is with the consent of the surety तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेंसस एड आइटम तो क्रिएट हो रहा है, वैलिड कंसेंट भी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। प्रॉब्लम क्या है कि यू आर डूइंग इट विदाउट श्योरिटी नोइंग इट, सो टू दैट नए कॉन्ट्रैक्ट को ही मे और मे नॉट गिव कंसेंट, सो वो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि जो वेरिएशन होती है ना वो इनवैलिड वेरिएशन होती है, इट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट वैलिड अंडर लॉ। तो अगर आप अपनी तरीके से मतलब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलके कोई ऐसे चेंजेस कर लेते हैं विच आर नॉट वैलिड अंडर लॉ, उन्हें नहीं भी पता विच इज़ नॉट वैलिड अंडर लॉ, तो जो चीज़ वैलिड नहीं है उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा और हम ये मान लेंगे कि देयर आर नो चेंजेस इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो इनवैलिड वेरिएंस होगी, यानी कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस बदल भी दी बट दे आर नॉट वैलिड अंडर लॉ, सो इट विल बी डीम्ड कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था इट इज़ एज इट इज़, देयर इज़ नो वेरिएशन, डिस्पाइट वेरिएशन क्रिएटेड, वेरिएशन उन्होंने अपनी तरफ से क्रिएट करी बट दैट वेरिएशन दोज ऑल्ट्रेशंस दे आर नॉट वैलिड अंडर लॉ, सो इट इज़ डीम्ड कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज इंटैक्ट, इट इज़ एज इट इज़, जैसे था वैसे ही है। तो अगर वो वैसे ही है तो वहाँ पे भी श्योरिटी कैन नॉट बी सेड टू बी डिस्चार्ज। सो गाइज, इस सेक्शन में 133 में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ऑल्टर अगर करोगे तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे, कौन करेगा ऑल्टर? बाय एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। वो लोग श्योरिटी को बिना बताए अगर चेंजेस करेंगे तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट that variation must be prejudicial to the interests of surety. If it is beneficial for the interests of surety, or that variation is with the consent of the surety, or that variation is invalid variation, so these three things will have no impact on the contract of original contract of guarantee which was entered into. It will remain intact, वैसे ही रहेगा, and hence we can conclude कि surety is not discharged from his liability towards principal debtor and creditor. I hope I'm clear in this point. Talking about next section, which is section 134, it talks about by release or discharge of principal debtor. Guys, बहुत बार क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जहाँ पे क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है। पॉइंट यहाँ पे देखो, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, हम रिलीज कर देंगे प्रिंसिपल डेटर को ऑफ हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर, या आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? उसके ऑब्लिगेशंस को खत्म कर देना, टू पुट एन एंड टू ऑब्लिगेशंस of principal debtor towards creditor. Now I'll be giving you an illustration to support this point. For example, what happens is कि यहाँ पे अब आप देखो सेक्शन 134 में कि there are two people A and B.
ए ने क्या किया, बी को कहा, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी लैंड पे इंडिगो ग्रो करूंगा। ए इज प्रिंसिपल डेटर इन दिस केस। ए ने बी को कहा कि आई विल बी ग्रोइंग अ क्रॉप ऑफ इंडिगो ऑन माई लैंड, आई विल बी ग्रोइंग इट ऑन माई ओन लैंड, और जब वो राइप हो जाएगी प्रॉपरली मैं आपको इंडिगो सप्लाई करूंगा एट अ फिक्स्ड रेट, प्रोवाइडेड यू हैव टू सप्लाई वाटर, यू हैव टू सप्लाई इरिगेशन टू माई इंडिगो क्रॉप। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ए ने क्या किया, इंडिगो क्रॉप को सो तो कर दिया, लेकिन बी ही डाइवर्टेड दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पानी ए की फील्ड्स में आना था, इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर और इरिगेशन कमिंग टू एज फील्ड, वो डाइवर्ट हो जाता है। सो ए की जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है, ए को क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे देखो कि एक तरीके से अब यहाँ पे एक इंसान श्योरिटी, ही स्टूड एज अ श्योरिटी, ए के लिए वो श्योरिटी खड़ा हुआ प्रिंसिपल डेटर के लिए, और उसने बी को कहा कि मैं अश्योर करता हूँ कि प्रिंसिपल डेटर जो है, यानी कि ए इन दिस एग्जाम्पल हु इज ग्रोइंग इंडिगो ऑन हिज ओन लैंड, कि वो आपको इंडिगो ज़रूर देगा। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि बी ने ए की फील्ड्स को इरीगेट कर दे, लेकिन ए बाद में कहे कि आई विल नॉट बी सप्लाइंग इंडिगो क्रॉप टू यू एट अ फिक्स्ड प्राइस, ही माइट बी सेलिंग टू सम अदर पर्सन एट अ हाई रेट। सो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अ पर्सन सी और एनी पर्सन एस, ही स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर ए, और उसने कहा बी को कि आई अश्योर यू कि आप इसकी फील्ड्स को इरीगेट करो, और ए आपको फिक्स्ड प्राइस पे एज फिक्स्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो आपको क्रॉप जो है वो सप्लाई करेगा। नाउ गाइस व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे बी ने क्या किया, इरिगेशन नहीं दी, यानी कि ही डाइवर्टेड हिज स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसीलिए ए को क्रॉप फेलियर देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर। क्रेडिटर को पता है कि इसमें मेरी गलती है, क्रेडिटर वेरी वेल नोज ऑफ दिस फैक्ट कि इसमें गलती मेरी है। जब उसकी गलती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल डेटर को लायबल नहीं ठहरा सकता, सिंस ही डिड नॉट इरीगेट एज फील्ड्स। ये कॉन्टिजेंट है, कंडीशनल है, यानी कि आप देखो ए क्रॉप्स तभी सप्लाई करेगा बी को, क्रेडिटर को, अगर क्रेडिटर उसकी फील्ड्स को पहले पानी देगा, इरीगेट करेगा। इट मीन्स एज कंडक्ट वॉज कॉन्टिजेंट अपॉन एफर्ट्स मेड बाय बी। लेकिन जब बी ने एफर्ट्स नहीं करे तो इन अ वे और द अदर क्रेडिटर हिमसेल्फ discharged or released principal debtor from his obligation towards creditor. Now if principal debtor is released, I told you कि surety will also be released, since we have read in section 120 of the Indian Contract Act that liability of surety is coextensive with that of principal debtor. With the liability of principal debtor coming to an end, principal debt extinguishes. I hope you are getting it कि अगर principal debtor की liability खत्म हो जाएगी तो surety की liability अपने आप खत्म हो जाएगी, because मैं already बता चुकी हूँ according to section 128 of the Indian Contract Act, liability of surety is coextensive with that of principal debtor. Coextensive को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। Coextensive means it is neither more nor less but equivalent to that of principal debtor. अब जब प्रिंसिपल डेटर को आपने रिलीज कर दिया फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर, क्रेडिटर ने खुद ही रिलीज किया क्योंकि उसकी खुद की ही गलती थी, तो वहाँ पे श्योरिटी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। गाइस आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी सेक्शन 134 में, व्हेन यू विल रीड द बेयर एक्ट लैंग्वेज, आपको दिखेगा इट इज़ बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर। बाय एन एक्ट ऐसा कुछ किया या नहीं किया, बाय एन एक्ट और ओमिशन on the part of creditor, legal consequence of which is the discharge of principal debtor. इस लाइन का particularly meaning क्या है मैं आपको एक और illustration से समझाती हूँ। For example, there are two people A and B, again principal debtor and creditor. What happens is कि principal debtor ने creditor को कुछ creditor ने principal debtor को कुछ सामान दिया, creditor credit करता है तो creditor ने for example कुछ goods दी on credit या कुछ money दी, ठीक है, on loan credit दिया या goods on credit, कुछ भी है क्रेडिटर की तरफ से फ्लो हुआ टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर। और जो यहाँ पे हमारा पर्सन एस और सी स्टूड एज अ श्योरिटी, और वो जो है वो अपने क्रेडिटर को बोलते हैं कि आई अश्योर यू कि ये इंसान या तो आपको गुड्स वापस करेगा या अपनी कोई प्रॉपर्टी वापस करेगा, गुड्स आपको वापस करेगा या आपको अमाउंट ऑफ मनी देगा। नो व्हाट हैपेंड इज कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को कहा कि मैंने आपसे गुड्स ली थी ऑन क्रेडिट या मैंने आपसे लोन लिया था, आई कैन नॉट पे दोज गुड्स, आई कैन नॉट गिव दोज गुड्स बैक, नीदर आई हैव एनी मनी कि मैं आपको वो गुड्स वापस कर सकूँ। वी कैन डू वन अग्रीमेंट, हम एक चीज़ करते हैं, आप मेरी प्रॉपर्टी रख लो अपने पास और एक तरीके से आप मुझे मेरी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज कर दो। आपने मेरे को जो भी दिया, बीट गुड्स ऑन क्रेडिट,
बी इट एनी लोन, जो भी आपने मुझे दिया, आई एम अनेबल टू रिपे दोस गुड्स टू यू और दैट लोन टू यू। आप क्या करो, दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर कि आप मेरी क्या कर लो, प्रॉपर्टी ले लो। अब आप मेरी प्रॉपर्टी अपने पास रख लो और वी विल अज्यूम एज इफ मेरा जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, जहाँ पे क्रेडिटर ने क्या किया, प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे अब आप देखो कि एक तरीके से क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी ली, ज़्यादा रेट पे, कम रेट पे, जैसे मर्जी उसने प्रॉपर्टी ली, बट दे हैव सेटल्ड इन अग्रीमेंट विद ईच अदर। और एक तरीके से क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया। अब अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 श्योरिटी भी अपने आप रिलीज हो जाएगा फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर और टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे वो जो लाइन मैंने आपको बताई थी कि एनी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने क्या एक्ट किया कि उसने प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी ले ली। एनी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर, लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। तो ये जो उसने प्रॉपर्टी का काम किया ना, कॉन्ट्रैक्ट में उसकी प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल डेटर की प्रॉपर्टी उसने खुद ले ली, तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि क्योंकि आपने सेटलमेंट कर ली है तो एक तरीके से अब क्रेडिटर ना तो श्योरिटी से वापस से क्लेम करेगा, ना ही प्रिंसिपल डेटर से कर सकते, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस सेटलमेंट अग्रीमेंट का लीगल कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि प्रिंसिपल डेटर स्टूड डिस्चार्ज्ड और रिलीज्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर एंड सो इज द श्योरिटी। आई होप यू गेटिंग इट गाइज। तो यहाँ पे सेक्शन 134 की जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दिस प्रिंसिपल और बिहाइंड दिस पॉइंट इज कि बहुत बार व्हाट हैपेंस इज, पहली बात तो हमें पता है कि सेक्शन 134 जैसे ये है, इन्होंने बताया कि अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। एक तो रीजन उसका क्या है, सेक्शन 134 विच इज section 128 which is कि liability of principal debtor surety is coextensive with that of principal debtor. It means with the liability of principal debtor coming to an end. अगर principal debtor की liability खत्म हो गई तो जो principal debt थी, I hope you remember हमने डायग्राम में principal debt भी ड्रॉ करी थी, तो I hope you remember कि वहाँ पे with the liability of principal debtor coming to an end, principal debt also extinguishes. जब principal debt ही नहीं रही तो surety की liability अपने आप खत्म हो जाएगी। Second important point behind this पॉइंट इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है गाइस कि अब आप देखो आपने क्या किया, प्रिंसिपल डेटर को एक तरीके से रिलीज कर दिया। अगर हम श्योरिटी को देन एंड देयर रिलीज नहीं करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे और जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी से क्लेम करेगा, तो व्हाट अबाउट राइट्स ऑफ श्योरिटीज विच ही हैज़ टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर कहेगा कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप में था ही नहीं, आई वॉज नॉट देयर, मुझे तो लीगली ऑफिशियल तरीके से क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया था, रिलीज कर दिया था फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। तो अगर क्रेडिटर श्योरिटी से पैसा ले भी लेगा तो श्योरिटी हैज़ नो राइट टू क्लेम मनी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा था कि श्योरिटी के राइट्स होते हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर विच इज़ राइट ऑफ सब्रोगेशन, वेयर श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और उसी तरीके से वो डील करता है जैसे क्रेडिटर करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट टू इंडेमनिटी, ये दोनों राइट्स होते हैं श्योरिटी के टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर, और ये राइट्स कब इन्वोक होंगे, जब उसने इन रियलिटी पैसा पे किया है क्रेडिटर को ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और वो कब होगा, जब श्योरिटीशिप इन्वोक होगी। श्योरिटीशिप इन्वोक कब होती है, जब डिफॉल्ट होता है ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। आई होप यू गेटिंग इट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेक्शन 134 को इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इसीलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म होते ही श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक तो सेक्शन 128 के कारण, और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर हम उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं करेंगे तो उसके जो राइट्स हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर वो एनफोर्सिएबल नहीं होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो श्योरिटी की पोजीशन विल बी वेरी मीजरेबल, ही विल बी अ हेल्पलेस पर्सन, सो नोबडी विल लाइक टू स्टैंड एज अ श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी के राइट्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्रिंज एक तरीके से साइडलाइन हो जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ आ चुके हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अब श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगी, श्योरिटी की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज होगी, विच इज़ when creditor compounds with in the sense contracts with, ठीक है, when creditor compounds with, gives time to or agrees not to sue principal debtor. This is under section 135 of the Indian Contract Act. Guys, what happens is बहुत बार क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को खुद ही बोल देता है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को खुद ही बोल देता है कि दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस यहाँ पे ये कंपाउंड्स विद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, देखो बहुत बार देयर आर टू पीपल,
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑलरेडी है, हम ये मान के चलते कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विद क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। अब बहुत बार क्या होगा कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर दिल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं कि आई गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, मैं आपको 1 साल का 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ और आप मुझे 1 साल में 2 साल में जितना भी है, सपोज क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ गुड्स दी थी ऑन क्रेडिट, अब अभी उसने गुड्स तो कंज्यूम कर ली, लेकिन उसको लोन वापस करना है, 20,000 की गुड्स थी, 30,000 की गुड्स थी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब जो आपका प्रिंसिपल डेटर है वो क्रेडिटर को नहीं पे कर पाए, सो दीज टू पीपल विदाउट श्योरिटी नोइंग इट, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, दीज टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। और जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, यू टेक अ टाइम ऑफ अ ईयर और सो, आप 1 या 2 साल का टाइम ले लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर्मल तरीके से कि आप विद इन ईयर और 2 आप धीरे धीरे करके मेरे को ये मेरा पैसा जो मेरा क्रेडिट है वो वापस देते रहना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, देखो कंपाउंड्स विद मतलब ये दोनों लोग क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर है, दीज टू पीपल दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके का कि आई गिव यू अ टाइम, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑब्लिगेशंस, या आई प्रॉमिस नॉट टू sue यू। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया विद इन अ ईयर, अब आपको पता है कि लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है, पैसा क्लेम जो क्रेडिटर है वो 3 साल में कर सकता है। क्रेडिटर ने क्या किया, 1 साल वेट किया, उसके बाद वो कोर्ट में जाता है इसको स्यू करने, बट प्रिंसिपल डेटर वहीं पे इसको रोक लेता है और वो बोलते हैं कि प्लीज़ डू नॉट स्यू मी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए मुझे स्यू मत करो, मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करो, विद इन दिस अपकमिंग ईयर मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, अगर मैंने नहीं दिया तो फिर भी आपके पास लिमिटेशन पीरियड 1 साल बच जाएगा, आप उसमें मेरे खिलाफ केस फाइल कर देना। दीज टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, मतलब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जहाँ पे आप क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स क्रेडिटर, या उसने क्या किया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है आई विल नॉट स्यू यू, बट गाइज इस चीज़ का श्योरिटी को पता ही नहीं है, इस चीज़ का श्योरिटी को नहीं पता, दीज टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, तो इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेरिएशन इन द मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है, एक वेरिएशन है। आई होप यू गेटिंग इट। तो इस चीज़ को अगर हम उस तरीके से भी इंटरप्रेट करें तो कहा जाता है कि अगर ये 2 लोग श्योरिटी की मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे इस तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आते हैं, तो वहाँ पे दैट थिंग विल हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। आप श्योरिटी को नहीं बोल सकते, श्योरिटी के कंसेंट के साथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करोगे, दैट इज वेल एंड गुड। अगर श्योरिटी को इस चीज़ का नहीं पता एंड यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, एंड क्योंकि श्योरिटी को उस चीज़ के बारे में नहीं पता, इट इज़ प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ही शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, और अगर आप उसको नहीं बताते हो इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशंस या वेरिएशंस के बारे में, इट इज़ डेफिनेटली प्री जुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्योरिटी को आप क्या कर सकते हो, फिर वहाँ पे श्योरिटी विल ऑटोमेटिकली बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। बट गाइज एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 137 है, सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट सेक्शन एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 135। सेक्शन 135 में ये कहा गया है कि अगर ये 2 लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इन चीज़ों को लेके, टाइम एक्सटेंड करने को लेके, फॉरबियरेंस टू स्यू को लेके, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी टूवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। बट सेक्शन 137 बोलते कि अगर इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मेयर फॉरबियरेंस टू स्यू, दैट विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगैन वही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। क्या हुआ, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को उसी तरीके से गुड्स ऑन क्रेडिट दिए, कुछ लोन दिया, बट 1 साल निकल चुका है, प्रिंसिपल डेटर ने ना तो उन गुड्स को वापस किया और ना ही उसने क्रेडिट वापस किया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो, अभी जो क्रेडिटर है वो स्यू नहीं कर रहा, क्रेडिटर हैज़ 3 years टाइम, 3 years का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 साल के विद इन ही कैन स्यू एट एनी टाइम क्रेडिटर को और उससे वो क्लेम, प्रिंसिपल डेटर को, और उससे वो क्लेम कर सकता है क्रेडिटर। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, लेकिन क्रेडिटर ने अभी तक स्यू नहीं किया प्रिंसिपल डेटर को। गाइस अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि सेक्शन 135 बोलते हैं कि श्योरिटी ऐसी सिचुएशन में डिस्चार्ज सिर्फ तब होगा जब इन 2 लोगों ने अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ,
या फिर मैं आपको फॉरबियरेंस करता हूँ कि मैं आपको स्यू नहीं करूँगा फॉर अ ईयर। अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस of which surety is unaware, that will have an effect of discharging surety from his liability towards these people। बट अगर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्रेडिटर की मर्जी है वो स्यू ही नहीं कर रहा, ही इज नॉट गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही इज नॉट फाइलिंग अ सूट और अ कंप्लेंट अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। इट डज नॉट मीन कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन लोगों के बीच। मेयर फॉरबियरेंस टू स्यू विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि अगर वो 2.5 साल के बाद भी सोचे क्रेडिटर, 2.5 years के बाद ही अवेक्स और वो सोचता है कि ठीक है मुझे क्रेडिटर को स्यू करना है, तो श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि आई एम डिस्चार्ज्ड फ्रॉम माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स दिस 2 people एज पर सेक्शन 135। नो, उस टाइम पे सेक्शन 137 इन्वोक होगा। सेक्शन 137 और सेक्शन 135 में यही डिफ्रेंसिएशन है कि सेक्शन 135 बोलते हैं कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, क्रेडिटर ने कहा, या मैं आपको स्यू नहीं करूंगा फॉर अ ईयर और सो विदाउट श्योरिटी नोइंग इट। लेकिन सेक्शन 137 बोलता है कि क्रेडिटर की मर्जी है, 2-2.5 साल अगर वो नहीं भी केस फाइल करता, उसके बाद भी विदिन 3 years अगर वो कभी भी केस फाइल करता है तो श्योरिटीशिप होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप विल बी इन्वोक्ड और श्योरिटी को अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई होप यू गेटिंग इट कि किस तरीके से सेक्शन 137 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 135। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 139 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी बात करते हैं कि किस तरीके से एक श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन अफेक्ट्स श्योरिटीज रेमेडी। तो इस बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिटर का खुद का ही कुछ ऐसा एक्ट और ओमिशन होता है जो श्योरिटी के रेमेडीज को अफेक्ट करता है। रेमेडीज मतलब क्या है, उसके कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। आई विल बी गिविंग एन इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हुआ, A and B are 2 people, they have entered into a contract। A ने कहा कि B को कि I'll be making a ship, I'll be building a ship for you, मैं आपके लिए एक शिप बनाऊंगा, ठीक है। तो A is principal debtor in this case, B is creditor in this case। तो प्रिंसिपल डेटर ने A ने B को कहा क्रेडिटर को कि मैं आपके लिए एक शिप बनाऊंगा। B बोलते ठीक है, क्रेडिटर बोलते कि ठीक है, जैसे जैसे शिप सर्टन स्टेजेस पे पहुंचती जाएगी, जैसे जैसे उसकी फॉर्मेशन होती रहेगी, आई विल बी पेइंग यू मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 उसकी इंस्टॉलमेंट्स बन गई कि मैं आपको इतनी इंस्टॉलमेंट्स में जैसे मर्जी आपको पे करूंगा एज एंड व्हेन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रीचेज सर्टन स्टेजेस। अब यहाँ पे देयर इज अ पर्सन C और S, ही स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर A के लिए वो श्योरिटी खड़ा होता है प्रिंसिपल डेटर के लिए, और वो B को बोलता है कि आई अश्योर यू A आपके लिए काम करेगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपकी शिप बनाता रहेगा, प्रोवाइडेड जैसे जैसे शिप बनती रहेगी आप उसको पैसा इंस्टॉलमेंट्स में देते रहना। क्रेडिटर कहता फेयर इनफ, ठीक है। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाज एंटर्ड इनटू। बट गाइस व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिटर ने श्योरिटी को बताया नहीं, और जो लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स थी, 2 इंस्टॉलमेंट्स लास्ट की इसको पहले ही दे दी। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रॉमिस हुआ था कि जो आपका प्रिंसिपल डेटर है A है, वो शिप बनाता रहेगा, जैसे जैसे शिप उसकी बिल्डिंग उसके कंस्ट्रक्शन सर्टन स्टेजेस पे पहुंचती रहेगी, वैसे वैसे इसको पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मिलता रहेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा वेरिएशन कर दी अपने आप। क्रेडिटर का कुछ ऐसा एक्ट, कुछ ऐसा ओमिशन रहा कि उसने क्या किया, ये जो लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट्स थी, अगर 5 to 6 इंस्टॉलमेंट्स बनी थी, तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट की 5th और 6th इंस्टॉलमेंट पहले ही, कंस्ट्रक्शन काम होने से पहले ही क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दे दी। तो कहीं अगर ऐसी कोई क्रेडिटर अपना ही कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी, तो वहाँ पे भी श्योरिटी क्या हम कहेंगे कि ही स्टूड डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑल दीज पीपल। क्योंकि कल को अगर ए जो है प्रिंसिपल डेटर जो है लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट्स लेने के बाद भाग जाए, राइट, ही फ्लाइज अवे, और वो काम ही ना करे, तो यहाँ पे अब जो आपका क्रेडिटर है वो श्योरिटी को स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि श्योरिटी ने क्या कहा था कि जैसे वो आपका काम करता रहेगा वैसे वैसे आप उसको पैसा देना। श्योरिटी ने कहा था कि ही विल बी वर्किंग फॉर यू, जैसे जैसे शिप बनती रहेगी वैसे वैसे आप उसको पैसा देते रहना। श्योरिटी ने किस चीज़ की श्योरिटी दी थी कि वो आपका काम करेगा, लेकिन उसने इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दी थी कि आप उसको पहले पैसा देना और फिर वो काम करेगा। सो बेसिकली जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था वही बदल दिया। क्रेडिटर ने अपने बिहाफ पे, अपने रिस्क पे पैसा दिया किसको, प्रिंसिपल डेटर को, विदाउट श्योरिटी नोइंग इट। अगर श्योरिटी को इन सिचुएशंस में गाइस, अगर श्योरिटी की कंसेंट के साथ कुछ होता है, दैट इज वेरी वेल, दैट इज फाइन, क्योंकि दैट विल नॉट एन इफेक्ट, दैट विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, श्योरिटी को पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए श्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रीजुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट।
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, किस तरीके से ये एक्ट करते हैं। सो क्रेडिटर्स ओन एक्ट और ओमिशन इट अफेक्ट्स श्योरिटी इज रेमेडी, श्योरिटी की रेमेडीज अफेक्ट होती हैं, तो वहाँ पे अब ऑब्वियसली श्योरिटी किससे क्लेम करेगा अगर प्रिंसिपल डेटर काम नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि श्योरिटी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, क्योंकि ये क्रेडिटर ने खुद के रिस्क पे काम किया विदाउट श्योरिटी नोइंग इट, उसको बता के नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी नहीं किया, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में। टॉकिंग अबाउट लास्ट विच इज बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी by creditor, which is section 141 of the Indian Contract Act. Guys, this section 141 we have already discussed. ये हमने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे राइट्स ऑफ श्योरिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। मैंने आपको बताया था कि एक श्योरिटी का राइट होता है टुवर्ड्स क्रेडिटर, और वो राइट श्योरिटी का ये होता है कि ही हैज़ राइट टू एवरी बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट विद मच इलस्ट्रेशन, बिकॉज जब हमने राइट्स ऑफ श्योरिटी किए थे अगेंस्ट क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, उस टाइम में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सेक्शन 141, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो हमारा क्रेडिटर होता है वो प्रिंसिपल डेटर से थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रख लेता है। फर्नीचर की इफ़ यू रिमेंबर मैंने एग्जांपल दी थी कि 2000 रुपीज़ का फर्नीचर जो है वो क्रेडिटर ने अपने पास रख लिया। सो बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिटर अपने पास कुछ सिक्योरिटी रख लेता है प्रिंसिपल डेटर से लेके, प्रिंसिपल डेटर से कुछ लेके वो सिक्योरिटी रख लेता है और श्योरिटी को एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है। फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ अमाउंट ऑफ मनी दी, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ की गुड्स, ये 2000 रुपीज़ इन हैंड इन कैश क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दे दिए। अब क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं कि अभी आपको पैसे की ज़रूरत है या गुड्स की ज़रूरत है, यू कैन हैव दिस मनी, बट अभी आप आपके घर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच इज़ वर्थ 2000 रुपीज़ उसको आप मेरे पास गिरवी रख दो। सो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को पैसा भी दिया और उसका फर्नीचर वर्थ 2000 रुपीज़ अपने पास रख लिया और एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे श्योरिटी को भी खड़ा कर दिया। अब उस फर्नीचर की इंपॉर्टेंस क्या होगी कि कल को अगर 2000 रुपीज़ जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को दिया, अगर प्रिंसिपल डेटर उसको वापस नहीं करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो क्या होगा, जो क्रेडिटर है वो उसकी प्रॉपर्टी वर्थ 2000 रुपीज़ को उसने कॉन्फिस्केट तो कर ही रखी है, अपने पास रखी हुई है, वो उसको बेच के पैसा क्लेम कर लेगा। तो ये होती है सिक्योरिटी जो उसने रखी हुई है और एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे उसने श्योरिटी को भी खड़ा कर लिया। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है कि वो पैसा कहाँ से क्लेम करना चाहता है। श्योरिटी से करेगा तो वो सिक्योरिटी को बेच नहीं सकता, फर्नीचर को। अगर वो ये सोचता है कि मैं फर्नीचर को बेच के पैसा क्लेम करूँगा तो वो श्योरिटी को स्यू नहीं कर सकता। ही कैन टेक रिकोर्स टू एनी वन रेमेडी विच इज़ अवेलेबल टू हिम। तो ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। तो वही होता है यहाँ पे कि अगर क्रेडिटर की नेग्लिजेंस के कारण, उसकी खुद की गलती के कारण बहुत बार क्या होता है वो सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है। दैट फर्नीचर माइट बी लॉस्ट, वो गुम सकता है क्रेडिटर की नेग्लिजेंस के कारण। दैट फर्नीचर माइट कॉट फायर और इट माइट बी लॉस्ट, इट माइट बी स्टोलन, कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटी के साथ। तो अगर क्रेडिटर की नेग्लिजेंस के कारण वो सिक्योरिटी गुम जाती है तो हम ये मान लेते हैं दैट प्रॉपर्टी माइट बी लॉस्ट, माइट हैव कॉट फायर, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर ने उसको बेच दिया और 2000 क्लेम कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली वो आप ही की नेग्लिजेंस थी ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिटर ने सिक्योरिटी भी ले रखी है और श्योरिटी को भी एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे खड़ा कर रखा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो या तो सिक्योरिटी जो उसने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखी है उससे क्लेम कर सकता है या वो श्योरिटी से क्लेम कर सकता है। बट इन द इवेंट अगर उसकी वो जो श्योरिटी है, आई एम सो सॉरी, सिक्योरिटी है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, अगर वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है बाय लॉस इन द सेंस इट माइट बी लॉस, इट माइट बी स्टोलन, इट माइट कॉट फायर, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग दी श्योरिटी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो प्रॉपर्टी भी आपकी गुम गई, 2000 वर्थ रुपीज़ 2000 फर्नीचर जो है उसको आग लग गई। अब क्रेडिटर कहते हैं कि दैट फर्नीचर हैज कॉट फायर, अब मैं वहाँ से तो क्लेम नहीं कर सकता, अब आप मुझे पैसा दे दो, तो वो चीज़ गलत होगी। ही कैन टेक रिकोर्स टू एनी वन रेमेडी अवेलेबल टू हिम। तो हम मान लेंगे कि उसने ही टुक रिकोर्स टू दैट प्रॉपर्टी विच वॉज मॉर्टगेज्ड फर्नीचर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एक बार वहाँ से क्लेम कर लिया तो अब श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकते। श्योरिटी स्टूड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स क्रेडिटर, ये मैंने उस टाइम पे भी पॉइंट को क्लियर किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाय नोवेशन। गाइस सेक्शन 62 आप सोचोगे यहाँ कहाँ आ गया, बट येस गाइस वी हैव कवर्ड बाय नोवेशन। नोवेशन एग्रीमेंट, ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। नोवेशन इज नथिंग बट सब्सटीट्यूशन। मैंने ये अलग से सेक्शन 62 पे वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। नोवेशन इज नथिंग बट सब्सटीट्यूशन। सो क्या होता है कि बहुत बार क्या होगा कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार क्या है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का आप एग्जाम्पल ले लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देयर आर 3 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कभी बार बहुत बार ऐसा होगा कि तीनों पार्टीज के कंसेंट के साथ
विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पीपल इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है और कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस पे नया कॉन्ट्रैक्ट ले आया जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। बट गाइज वहाँ पे क्या होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज प्रीवियस ऑब्लिगेशन। सो ऑब्वियसली सारी पार्टीज की कंसेंट के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, अब आप इस पॉइंट को वेरिएशन के साथ कंफ्यूज मत करना, बिकॉज इस पॉइंट में क्या होता है, नोवेशन इज क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नोवेशन में हम सब्सटीट्यूशन करते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट की विद सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पीपल। अब आपको पता है कि सारी पार्टीज के कंसेंट के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया गया, तो ऑब्वियसली हर एक पार्टी जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थी, दे विल बी डिस्चार्ज्ड। नॉट ओनली श्योरिटी बट प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्लिगेशंस और दे विल बी बाउंड बाय न्यू ऑब्लिगेशंस। तो क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशंस करके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जाएगा। तो वहाँ पे नॉट ओनली श्योरिटी बट एवरी पार्टी, एवरी पर्सन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, हर एक की लाइबिलिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। प्रीवियस लाइबिलिटी कंसर्निंग प्रीवियस और ओल्ड और फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट विल बी, it will come to an end, it will be discharged and they will all be bound by the new contract which is by novation. So एक हमने ये कब रीड किया था, हमने जब कॉन्सेप्ट रीड किया था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकते हैं, बहुत सारे मोड्स हमने डिस्कस करते, बाय परफॉर्मेंस, उसी में हमने डिस्कस किया था कि बाय नोवेशन, एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट बाय नोवेशन भी डिस्चार्ज होता है जब सारी पार्टीज डिसाइड करती है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए और कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसी कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड किया जाए, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड नोवेशन के तरीके से, इसके जरिए से बाय सब्सटीट्यूशन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इट मीन्स कि पुरानी जो ऑब्लिगेशंस थी ऑफ ऑल द पार्टीज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कम्स टू एन एंड विद the coming of end of that contract. I hope guys आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है। These are various modes of Indian contract act. Lot many sections have already been discussed. हमने किसी न किसी वीडियो में गारंटी की ऑलरेडी इनको डिस्कस किया है। I hope guys this section is, this topic is quite clear to you. Still, if you have any doubts, if you have any queries, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts for sure. So thank you so much guys. Keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.